Hello everyone and welcome back to my channel Miracle Learning. So in today's video, we'll be talking about the NT UGC NET Public Administration exam that was conducted on 5th of November 2020, that is very recently. So this is the first video that I'll be putting after the conduction of this year's exam. So I have divided this video into a few segments, which are: first we'll be talking about the nature of the question paper, then we'll talk about cutoff, and then we'll be solving the exam questions. जैसे हमने पहले जो पेपर्स है उनको सॉल्व किया है, तो इस पेपर को हम इसी वीडियो से स्टार्ट करेंगे. We'll be starting the first few questions and we'll be looking into their solution, their explanation and the analysis part. Also, I will be sharing feedback of a few students in this very video. So stay tuned till then, right? So let's get started. Okay, so first part is the nature of the exam, or how I see it, what is my take on the exam, right? So now you can see on the screen, this is the poll that I put on the community tab on my channel 3 weeks ago. तो 3 हफ्ते पहले मैंने ये टैब पोल डाला था, सॉरी, ठीक है, अपने कम्युनिटी में, और आप लोगों ने ये जो है वोट किया है. तो द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट यू. Yes, so the results are in front of you. So I asked you about the level of the exam that very day on 5th November, and about 104, you can see 104 जो लोग हैं उन्होंने वोट किया, और उनके हिसाब से like 53% of the people voted for moderate levels, right? तो आप लोगों में से ही जो 53% जो percentage है लोगों की, they said that the level of the paper was moderate. उसके बाद like 33% people felt that it was difficult, and then 8% felt that it was very easy, then 4% felt that it was easy, and 3% felt that it was very, very difficult. Okay, so ये आपके सामने है that 53% felt that it was moderate level. Now this is what you all have given me the feedback, right? Now when I saw the paper, now I will be sharing that what is my take. So I too found the level a moderate one. It was neither too easy nor it was too difficult, right? अब इसको हम थोड़ा और देखते हैं. So what I liked about the paper is that it had a very good blend. It was a very good mixture. किस चीज का मिक्सचर, मुझे खास बात क्या लगी इस पेपर में, तो दैट लेट अस सी दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. तो बहुत अच्छा एक बैलेंस बना हुआ है पेपर के अंदर बिटवीन इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस. तो आपको पेपर में बहुत आसान क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, मॉडरेट के भी मिलेंगे, थोड़े से मुश्किल भी मिलेंगे. तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उसका एक बहुत अच्छा बैलेंस आप इस पेपर में देख सकते हैं. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कई बार होता है कि पेपर इज वेरी फैक्चुअल. Sometimes it happens that paper is very conceptual. So balance between factual questions and conceptual questions has also been maintained is in this very question paper. Right? So for example, books पूछनी थी, books and authors भी पूछे हैं, definitions पूछनी थी, definitions भी पूछे हैं, और साथ साथ assertion reasoning के जो questions हैं उनका नंबर भी increase हुआ. तो थोड़ा सा conceptual जो है increase हुआ, which I personally liked very much. Now next is previous year questions and new questions. So previous year questions भी repeat हुए हमने देखा, and new questions were also there. So again you can see a very good blend between previous year questions and new questions. Then direct questions were there and indirect questions were also there. So what happens is कि हम देखते हैं कि जब कोई question repeat होता है तो कई बार वो as it is repeat हो जाता है. तो यहाँ पर repetition as it is भी थी, ठीक है, जो कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, और एक इनडायरेक्ट तरीके से भी रिपीट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो जो रेलवे बजट वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसको वो ऐसे पूछ सकते थे कि अलग कब हुआ रेलवे बजट, विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है. उसको ऐसे पूछ सकते थे कि वो जो मर्जर है कब अप्रूव हुआ, डायरेक्ट पूछ सकते थे, हम बोलते 2016 में अप्रूव हुआ, ठीक है. लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि उसके बीच का डिफरेंस पूछ लिया, हाउ मेनी गैप. तो है तो वो सिंपल मैथमेटिक्स, बट उसको थोड़ा सा पूछने का जो तरीका है उन्होंने इनडायरेक्ट कर लिया. Similarly, there was a question, I think it was on पंचायती राज institutions, कि पंचायती राज डे जो है वो क्यों मनाया जाता है. Now it comes in the evolution of पंचायती राज, 73rd 74th amendment जो हम पढ़ते हैं. So that was a direct question. उसको उन्होंने डे की तरह से पूछ के थोड़ा सा जो है हल्का सा घुमा दिया. So you see the question is very easy, but it has been asked indirectly. There are many more questions, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे, so I will be pointing
goes out to you. So you see कि हर तरीके का बैलेंस जो है इस पेपर में बनाने की कोशिश की गई, फिर चाहे वो लेवल हो, चाहे वो कंसेप्चुअल या फैक्चुअल के बीच का जो है बैलेंस हो, प्रीवियस ईयर न्यू क्वेश्चंस का जो है, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो एक बार जब आप पेपर देखोगे आपको लगेगा कि ये तो ऑफ ट्रेंड आया है, ठीक है, जिससे मेरे को जब फीडबैक मिला आई फेल्ट लाइक ओ इट इज ऑफ ट्रेंड। बट जब आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो वही चीजें पूछी हुई हैं जो हम पढ़ रहे थे, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, विच इज नाइस। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन करके जाएंगे, सारे लोग ऑलमोस्ट मतलब करके जाना चाहिए, एटलीस्ट सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं सारे के सारे लोग डेफिनेशंस भी एक बार करके गए होंगे, ठीक है, लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी होगी, तो फिर वो कैसे सिलेक्ट करेंगे 6% को? So that is why this was very much needed and the जिसने भी ये पेपर सेट किया है, I don't know, जिसने भी पेपर सेट किया है, it is very beautifully set. It मतलब I personally found it very beautiful set. It you can see कि एक effort किया गया है, एक special effort has been made to maintain the balance, to set it, मतलब बहुत अच्छे से पेपर जो है आई वुड अप्रिशिएट। आई डोंट नो कि ये वीडियो कभी उस लेवल तक पहुंचेगी कि नहीं कि जिसने पेपर सेट किया उन तक ये वीडियो जाए, पर अगर इफ इट गोज, अगर जिन्होंने सेट किया है वो वीडियो देख रहे हैं, तो इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेट पेपर। आई पर्सनली लव्ड इट, राइट? So all in all, it was a very good question paper. Or this is my view, this is my take on the nature of the question paper. Now let's move forward. Okay, so cutoff. So before we talk about the cutoff, a lot of mails I have been getting कि मैम cutoff क्या होगी आपके हिसाब से, comments भी आ रहे हैं. So let us see. अभी आपके सामने I will telling you. See, we all know कि cutoff कितनी मतलब कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। अगर हम नेट की बात करें इट इज 6%, राइट? now 6% ऑफ व्हाट? दिस इज 6% ऑफ दोज कैंडिडेट्स जो दोनों के दोनों पेपर जो हैं, जो अब तो आपके मर्ज हो गए हैं, उनको अटेम्प्ट करते हैं। मतलब जो जनरल पेपर है और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों को दोनों पेपर जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसका 6%, राइट? तो फोर अब वो जो नंबर है उस नंबर का 6% जो होगा वो लोग क्वालिफाई करेंगे। नाउ गिवन दिस ईयर, इस साल जो कंडीशंस थी अगर आपने देखी हो तो पहली बात हमें पता है पैंडेमिक चल रहा था, ठीक है? तो सम पीपल आर सेइंग कि जो नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स थे वो कम थे, दैट वाज लेस। आई डोंट नो, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, ठीक है? स्टार्टिंग के पेपर जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स थे उनमें ज्यादा कम थे। आई डोंट नो अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? नाउ सेकेंडली, पेपर जो था बहुत बार एक्सटेंड हुआ, तो कई बार होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ने नहीं भरा, उसके बाद वो दोबारा भर रहे हैं, फिर सोचते हैं कि चलो यार भर ही देते हैं, तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो वो इंक्रीज हो। सो इस नंबर के ऊपर कि कितने लोग दोनों के दोनों शिफ्ट जो उसमें बैठे, दोनों के दोनों पेपर जिन्होंने कंप्लीट किए, अभी वो एक ही है, मतलब दोनों सेक्शंस जिन्होंने कंप्लीट किए, इसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कट ऑफ, राइट? चाहे आपका पेपर का लेवल कैसा भी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज द नंबर दैट विल डिटरमाइन, दिस इज द नंबर दैट विल डिटरमाइन द कट ऑफ। नाउ जब तक कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता, कोई ऑफिस में वहां पे काम नहीं कर रहा, नो बडी कैन टेल यू द कट ऑफ। आई विल व्हाट आई कैन टेल यू, जस्ट अ मिनट, आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, जो लोग एंशियस हैं वो क्या करेंगे, वो अलग अलग वीडियो सर्च करेंगे, अलग अलग टीचर्स को बोलेंगे कि आप प्रिडिक्ट कर दो, एंड देन दे विल लुक फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन की शायद हमारा हो सकता है। नाउ लेट मी पुट यू द फैक्ट्स। अब हम पिछले 3 साल की जो है, पिछले 3 पेपर्स की जो है कट ऑफ देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट दिसंबर 2019, then I will talk about June 2019, and then I'll talk about December 2018. Okay, right? So right now I am talking about the unreserved category or the general category. Okay, तो JRF के लिए दिसंबर 2019 में जो आपकी कट ऑफ है 68% के आसपास गई, and for net it was 60%. In June for unreserved category आपकी जो JRF के लिए थी it was 65.3%, and for net it was 58%. Now for December it was 66% for JRF and it was 59.33% for your net. ठीक है, तो इग्नोर द हैंडराइटिंग प्लीज। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दें 3 साल की कितनी गई। अब मैं आपको बोल दूं कि ऑलमोस्ट उतनी ही जाएगी, ±2%।
ओके, ज्यादातर लोग बोलेंगे +-1% और +-2%। नाउ इफ आई से दिस, तो इतना ही वेरी होता है नॉर्मली। आप देखोगे +-1%, 2% इतना ही वेरी कर रहे हैं, 2%। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, यहाँ पे 2%, 1%। तो इफ आई से कि ओके 60% है, +-1 और 2% आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप तो उसी कंफ्यूजन के अंदर रहोगे ही रहोगे। तो एग्जैक्ट कट ऑफ नोबडी कैन एस्टिमेट। ओके, नोबडी कैन एस्टिमेट। मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि कितने लोग बैठे, कितने लोगों ने दोनों को दोनों पेपर दिया, एंड ऑल्सो कि उसमें उसके बाद पेपर का लेवल कैसे था। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये करके बता दिया कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम, बोथ द सेक्शंस, इट डिपेंड्स, द कट ऑफ डिपेंड्स, 6% डिपेंड्स, राइट। तो +-2% ही रहेगा, ये आपको समझ आ गया होगा अब तक देखकर। इतना ही होता है, पेपर कैसा मर्जी हो इतना ही होता है, जब तक कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर ना आ जाए। नाउ अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें पेपर की, तो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज मॉडरेट लेवल। जैसे मैंने बता दिया, थोड़ा सा ऑफ ट्रेंड था। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी या जिनका जो माइंडसेट है उस टाइम पे काम नहीं रहा होगा, हो सकता है उन्होंने हड़बड़ाकर गलती कर दी हो। तो जो पहली बार मैंने पेपर देखा, मुझे लगा हल्का सा ऑफ ट्रेंड है, जैसे हर किसी को लगा। लेकिन व्हेन आई आस्क्ड यू फॉर द फीडबैक, जो प्रोविजनल जो है आंसर की आ गई, उसके बाद जो मुझे मेल्स आई हैं, सो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी मुझे मेल्स आई हैं, दे आर स्कोरिंग अबव 62%। अभी मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज द फाइनल रिजल्ट इज नॉट आउट। सो बट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माय ओन स्टूडेंट्स, जिन्होंने टेस्ट सीरीज भी ली है, जिन्होंने रिप्लाई किया है, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, बेसिकली जो हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं, चाहे टेस्ट सीरीज ली हो चाहे ना ली हो, दे आर स्कोरिंग अबव 62%। ठीक है, मुझे लग रहा था कि पेपर शायद हो सकता है मुश्किल हो, बट मतलब ये फीडबैक है आप लोगों का, जो आप वीडियो देख रहे हो, आपको भी पता होगा जिन्होंने रिप्लाई किया है। किसी का 62, 63, 64 तक परसेंट तक भी, 64.5 तक के आसपास भी मेरे पास जो है मेल्स आए हैं। एंड कुछ ऐसे भी है जिनके पूरे पॉइंट पे 60 के आसपास जो है मार्क्स बन रहे हैं, लाइक 59 पॉइंट समथिंग है, या 60 पॉइंट समथिंग है, 61 पॉइंट समथिंग है। सो आई कैन नॉट टेल यू द कट ऑफ, आई नेवर डू दैट। मैंने अपने टाइम पे भी कभी एस्टिमेट नहीं किया। आई वुड जस्ट से कि जो होना था वो हो गया है। विद इन 1 or 2 days द एग्जाम, द रिजल्ट वुड बी आउट। अगर मैं आपको बोल भी दूं कि 60% तक कट ऑफ जाएगी, तो दैट इज नॉट श्योर। अगर 1% पॉइंट समथिंग, 0.33 भी कम हो गई तो आपका नहीं होगा, 0.33 भी ज्यादा हो गई तो आपका हो जाएगा, राइट। तो ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप किसी की, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, उसके वर्ड्स में ना ढूंढिए, ठीक है, लॉस आप ही का है। तो बट आई रियली विश कि आप सबका जो है, जिन्होंने भी मेहनत की है, उनका एग्जाम जरूर क्लियर हो। तो दिस इज द सीन ऑफ कट ऑफ। चाहे ये पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, एग्जैक्टली कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक आपको सेटिस्फैक्शन देने के लिए कुछ भी नंबर बोल दें, दैट इज अनदर थिंग, पर एग्जैक्टली कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। फैक्चुअली मैंने बता दिया आपको क्यों, ऑफिशियल डेटा मेरे पास नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज, ओके, सो दिस इज द फीडबैक। सो जिस दिन पेपर हुआ था, उस दिन मैंने पोल डाला था कि आपको कैसा लगा। तो उस दिन जो मेरे पास कुछ फीडबैक आया, और नेक्स्ट डे, तो दिस इज द फीडबैक ऑफ 5th नवंबर एंड आई थिंक 6th नवंबर। तो ये कुछ फीडबैक है जो मैं शेयर कर रही हूँ। आई वांटेड टू थैंक दीज पीपल पर्सनली। वैसे मैंने रिप्लाई किया हुआ है, बट आई वांटेड टू थैंक दीज पीपल एंड शेयर द फीडबैक विद द होल कम्युनिटी। सो आई एम डूइंग, आई विल जस्ट टेक 2 minutes and I'll do this. Okay, so for Manoj Singh says that, hi ma'am, hi Manoj, just because of your lecture series I learned a lot. I am excited for the result. See what happens. So all the best Manoj. I am also excited for the result of you all. Do share the result whenever it is, as soon as it comes. Okay, drop me a mail or drop me a comment or drop a message on my Facebook page. Then it is Naveen Kumar. He says, your detailed explanations of previous year papers helped me to solve 10 to 15 questions today. Thanks a lot. That's really great. Like 10 to 15 क्वेश्चंस अगर आपके सॉल्व हो गए उन वीडियोस की वजह से, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच नवीन एंड ऑल दी बेस्ट, एंड लेट मी नो व्हेन द रिजल्ट इज आउट। एंड देन नेक्स्ट इज ऋतिक शर्मा। ही सेज, पेपर वाज गुड मैम, आपकी क्लास से काफी हेल्प मिली, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे। सो थैंक्स फॉर द फीडबैक ऋतिक शर्मा, ऑल दी बेस्ट। देन नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ फेसबुक मैसेज। तो जो पर्सनल कम्युनिकेशन मेरे साथ हुई है, जैसे सपोज फेसबुक पे या ईमेल्स पे जो उसी दिन आई थी मेल्स मेरे पास या मैसेजेस, तो उनका जो मेरे नेम है यहाँ पे नहीं शो कर रही, बिकॉज दैट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। सो नेम एंड फोटोज आई हैव हिडन। सो दिस इज अ फेसबुक मैसेज। मैम आई डोंट नो रिजल्ट कैसा होगा, बट जितना भी हुआ आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हुई। कल जो वीडियो आपने डाली थी 3 क्वेश्चंस,
डायरेक्टली उसी से सही हो गए. आई एम ग्रेटफुल टू यू मैम. तो थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस इज द वीडियो शी इज टॉकिंग अबाउट. 73rd 74th वाली जो थी उसमें से क्वेश्चंस आए. एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है मैंने वो वीडियो डाल दी. बनी पड़ी थी काफी टाइम से, पर डल नहीं पा रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी. तो आई पुट इट और वो काम आई काफी लोगों के. सो ऑल दी बेस्ट. नेक्स्ट इज चौधरी शबीर ताज. ही सेज आपकी क्लास एंड प्रीवियस पेपर से बहुत फायदा हुआ. So thank you so much Shabir, all the best, and please share the result whenever it is out. And okay, some more feedback is here. So this is Madam Pranam. आपकी टेस्ट पेपर से डायरेक्ट, अच्छा, दिस इज द ईमेल दैट आई रिसीव्ड from a student, and so I have hidden the name and the profile picture. So मैडम प्रणाम, आपकी टेस्ट पेपर से डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आए थे. उम्मीद है अगले एग्जाम में मैं और अच्छा कर पाऊँ. आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है. तो मैंने पर्सनली रिप्लाई कर दिया है. मार्गदर्शन इज ऑलवेज देयर, माय गाइडेंस इज ऑलवेज देयर. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. नेक्स्ट इज शबीर खान. He says single channel of public administration on YouTube which provides authentic content. Thank you so much, Shabir. This really means a lot. This comment made my day really. And ma'am, you defined very well 100% concept clarity. Your efforts are really motivated me as well as the Miracle YouTube family also. So thank you so much, Shabir. When you give this feedback, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ समथिंग तो फीडबैक आता है, बट आई नेवर शेयर much on the channel, so I thought कि अब करना चाहिए थोड़ा बहुत, so I did. And your this comment really means a lot to me. Please let me know whenever the result is out. All the best. Next is Shivani Rai. She says that your lectures proved to be very helpful. Thank you, ma'am. Welcome, Shivani, and all the best. Next is Vishnu Priya. She says, thanks a lot, ma'am, for your efforts. Your guidance means a lot and helped at exam as well. There were 3-4 questions from 11th 12th schedule articles. So thank you so much for your feedback, Vishnu Priya, and all the very best. Let me know when the result is out. So ये जो सारा फीडबैक मैंने शेयर किया है, कुछ फीडबैक है वो जो उसी के उसी दिन आया. उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. दैट इज डिफरेंट. Those mails are different, those comments are different. I might share them after the result is out. But ये सारा वो है जो मैंने पोस्ट डाली और उस पे आया. So thank you so much for this feedback, right? Okay, तो आगे चलते हैं. Oh yes, just this is a picture that I shared on the community page 2 days back that I opted for public administration because, और इसके साथ एक राइट अप भी था जिसमें मैंने आपको कहा था that I want to know the reason why you opted for public administration and I wanted you to share it with me, be it on the public domain, चाहे आप उसको comment में share करें, मुझे Facebook पे message करें, चाहे मुझे mail करें. So a few students mailed the answers और कुछ ने, बहुत कम लोगों ने जो है comment किया. तो पहले जो जिन्होंने कमेंट किया, मैं ये पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन, बट आई वांट टू अप्रिशिएट दिस पीपल फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड डिसाइडिंग टू गिव एन आंसर, राइट? So first of all, Vinita Singh, thank you so much for taking the action, for choosing to respond to my mail, this post. Then Mahesh Bodeja, thank you so much. Mahesh, do check out the reply. And Vishnu Priya, thank you so much. Then we have Shabir Khan, thank you so much Shabir for sharing a reason. Then Mr. Devil, thank you so much Mr. Devil. Please let me know your real name, okay? Then Atul Yadav, thank you so much. I really liked what you wrote over here. Then Sarita Pandey, thank you so much. तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जो फीडबैक है कमेंट्स के अंदर डाला पब्लिक डोमेन में. जो जिन्होंने मतलब मेल में डाला है उनको मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैंने इनको पर्सनली रिप्लाई कर दिया. एंड थैंक्स टू देम ऑल्सो. जिन्होंने नहीं किया और ये पिक्चर देखी है, सो आई वॉन्ट टू आस्क व्हाई. Like you are studying public administration, why can't you share the reason you opted for public administration? It can be civil services, it can be something else, it can be हो सकता है कि आपको ऐसे किसी ने बोल दिया, आपने ऐसे ही ले लिया, like अतुल said कि पता ही नहीं क्यों ले लिया, but अब इसी में कुछ करना है. So whatever is your reason, it can be as simple as civil services, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे लोग जो है सिविल सर्विसेज, और हो सकता है कुछ और रीजन भी हो. There are many people who are pursuing jobs, who are already into government jobs, and they're still studying public administration, right? So अगर आपने पोस्ट नहीं देखी और अगर आप अब देख रहे हो तो प्लीज डू शेयर. आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हैं. डू शेयर कि what made you choose this public administration as a subject, right? You want me to put videos, okay? You want me to take action to give you good content. I also want you to take action,
राइट। तो जिन्होंने एक्शन लिया, वेल एंड गुड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दोज। जिन्होंने नहीं लिया, डू दैट नाउ। ओके, यू विल फाइंड माई email ID and you will find my Facebook, all the details in the description box. Okay, so now let's get into this part of the video finally, जहां हम स्टार्ट करेंगे आज solution, explanation and analysis of the exam questions of the NTA UGC NET Public Administration June 2020 exam, which was held on 5 December, which got extended, postponed and was finally held on 5th of November. Okay, so now in this video, क्योंकि और बहुत कुछ शेयर करना था, I will be doing 5 questions. Okay, और moreover 5 questions because like मेरा जो inertia है, ताकि वो धीरे धीरे खत्म हो सके, I can break that inertia. Okay, now in the next 2-3 videos we'll increase the number to normal 10, like maybe the next video will be of 5 questions also, और धीरे धीरे करके हम normal जो standard 10 questions का है उस पे आ जाएंगे. So now first question for today is, which among the following are true about the comparative public administration? तो CPA या comparative public administration के बारे में कौन सी statements जो हैं वो सही हैं? तो आप पहले देखोगे कि कितनी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और ऑप्शंस के अंदर आपको हर ऑप्शन में 3-3 दी हुई है, मतलब आपको एक गलत जो स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट करना है. ओके, सो statement number 1, A is, it is cross cultural, it is cross institutional and it is cross national in nature. B, it has helped to eliminate the narrowness of provincialism and regionalism. 3, it is practitioner oriented. And 4th, D, it attempts to seek knowledge for the sake of knowledge. Now coming to statement A, it is cross cultural, cross institutional, cross national in nature. Is this true? Yes, it is true. That is why we are comparing पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे. एक कल्चर में सीमित नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन में सीमित नहीं है, एक नेशन में सीमित नहीं है. इट क्रॉसेस ऑल दीज. तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू. ठीक है, तो जिसमें ए नहीं होगा वो ऑप्शन आपका कंफर्म है कि गलत हो गया, तो 2 तो पक्का आपका नहीं होगा. Then it has helped to eliminate the narrowness of provincialism and regionalism because it is crossing regions, it is crossing cultures. So obviously it is helping us eliminate the narrowness of regionalism, provincialism, क्योंकि हम प्रोविंस के बाहर देख रहे हैं, हम रीजन के बाहर देख रहे हैं. So this statement has to be definitely true. तो बी भी पक्का ठीक है. अब देखो ए बी दोनों कहाँ कहाँ पे हैं, तो फर्स्ट में है, 3 में है, 4th में नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरे को गलत हो गया. ठीक है, उसके बाद है इट इज प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड. नाउ अगर आपने क्वेश्चन मतलब पढ़ रखा है तो डेफिनेटली यू विल पॉइंट आउट कि ये तो पक्का गलत है, और अगर नहीं भी आता तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नाउ डी सेज दैट इट अटेम्प्ट्स टू सीक नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, की जो नॉलेज बिल्डिंग है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बिल्डिंग की है, मतलब कि जो फोकस है ऑन थ्योरी बिल्डिंग. So this statement is definitely true. When you will study the nature of comparative public administration or you will study the features of comparative public administration, उसमें आप पढ़ोगे कि इसका जो ध्यान था वो completely theory building के ऊपर था. ठीक है, और यही बाद में इसका जो है थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो भी निकल के आया, इसका डिसएडवांटेज भी निकल के आया कि जिसका सारा जो फोकस है वो थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर है. सो ये तो पक्का पक्का सही है. तो कौन सा गलत होगा? सी नहीं आएगा. तो आप देख लो इन दोनों में से सी किस में है? 1 में है, तो ये वाला नहीं आएगा. आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन. ये मैंने आपको बताया था, किसी ने आई थिंक नवीन ने रिप्लाई भी किया कि उनकी हेल्प हुई. इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो यूनिट कौन सा है? यूनिट 5, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. टॉपिक इज कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. Right. Now next question is, arrange the following steps of the research process in a sequential order. तो रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनको ऑर्डर में लगाना है. बहुत बार पहले भी क्वेश्चन आया है, पेपर 1 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप कि ये सबको आता होगा. So let us see the statements first, the steps first. Now, A is preparing the research design. We are not here. I want to say कि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसा है. आई एम टेलिंग यू व्हाट इज माय अप्रोच. ओके, हाउ, और हो सकता है कि आपके पास इससे भी बेटर अप्रोच हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट आई एम शेयरिंग माय अप्रोच कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना होता हाउ आई वुड डू दैट. ओके, सो A is preparing the research design. सबसे पहले रिसर्च डिजाइन बनाना. Then reviewing concepts and theories. C, determining the sample design. 4th is D is generalizing and interpreting data, and E is hypothesis testing. Now what I do is कि इनमें से या तो आप देख लो कि सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे आखिरी कौन सा आएगा, जो आप श्योर हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम डेफिनेटली श्योर कि जर्नलाइज करना
तो बाद में आता है इन सब स्टेप्स में से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है मैं बोल रही हूँ कि डी जो है बाद में आएगा। तो अब आप इनमें देखो कि डी किस में बाद में है, ठीक है। तो डी किस में है, 3 या 4 में। आप उल्टा भी आप स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, सो लाइक आप पीछे से देखोगे तो या तो ई है या फिर डी है। तो आई एम श्योर कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद ही हम जनरलाइजिंग करते हैं। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो गए, आपके पास बच गए 3 एंड 4 ना। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में स्टार्टिंग का अलग है। तो ए और बी में से पहले कौन सा आएगा ना। ए इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन एंड बी इज रिव्यूइंग कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। सो आई नो कि पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है, जो फील्ड है जिसमें हमें रिसर्च करनी है, उसके बाद वी रिव्यू द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज एंड प्रीवियस रिसर्च तो उस फील्ड पे हुई है। तो बी पहले आना चाहिए, दिस आई एम श्योर। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट। अब चेक करने के लिए हम एक बार देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। सबसे पहले बी मतलब रिव्यूइंग कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, उसके बाद ए, उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद सी डिजाइन बनाने के बाद हम सैंपल डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद हम ई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे एंड फिर जनरलाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा करेंगे, राइट। तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज, स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू गो अबाउट। वैसे सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर टफ होता तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। So unit research methodology, unit 10, and topic is steps of research. Now in the syllabus of public administration, steps of research is not mentioned, लेकिन पहले से questions आते हैं। प्लस steps of research जो है वो आपका पेपर 1 का सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, राइट। सो थर्ड आपकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। Now question number 3, grapevine is often referred as, very easy question, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट इतनी बार कराया, ठीक है। ग्रेपवाइन पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आई थिंक फेसबुक पेज पे भी शेयर किया हुआ है, और वैसे भी आई थिंक सबको आता ही होगा, पेपर 1 में भी आया हुआ है। तो 1 फॉर्मल कम्युनिकेशन, 2 टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, 3 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, 4 वर्टिकल कम्युनिकेशन, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। So question is unit 1 is from unit 1, introduction to public administration. Topic is principles of organization, specifically communication, and option number 3 will be correct. Now question number 4 for today is, which among the following are true regarding the features of responsive administration? Now term यहाँ पे कीवर्ड क्या है, responsive administration। आपने बताना है कि इनमें से सही कौन सी हैं स्टेटमेंट्स। पहले ऑप्शन देखो सबसे पहले। तो ऑप्शंस में आप देखोगे कि सारे के सारे ऑप्शंस में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, मतलब ऑल तो आपका नहीं आएगा। तो अगर आपने एक भी एलिमिनेट कर दी सही से तो आपको आंसर मिल जाएगा। इतना क्लियर है। नाउ ए, इट इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट, बात किसकी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, एंड कैरीज अ डेफिनेट कोनोटेशन, एक डेफिनेट फिक्स्ड कोनोटेशन, फिक्स्ड मतलब है रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन का। मे बी, लेट्स सी अदर स्टेटमेंट्स। इट इज लाइक, आई नो द आंसर, तो मैं बोल दूंगी पक्का गलत है, but you can say okay maybe. Now second is, it is micro level concept deriving its credibility and validity from the delivery system of a country's public administration. तो ये वैलिडिटी की बात करता है, ड्राइव कर है वैलिडिटी फ्रॉम डिलीवरी सिस्टम ऑफ अ कंट्रीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी मच राइट, ठीक है। उसके अभी मैं सारा समझाऊंगी। उसके बाद है, इट एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेजेस द सिटीजन सोवरेनिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग्स। की एक्सप्लिसिटली मतलब खास तौर पे, स्पेसिफिकली जो है एक्नॉलेज करता है, कौन, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन एक्नॉलेज करता है किसको, सिटीजन सोवरेनिटी को। सिटीजन का जो पावर है अपने आप को गवर्न करने की, अपने देश चलाने की, लाइक इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सोवरेन कंट्री भी हैं बिकॉज हम अपने माई बाप जो है वो खुद हैं, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड लास्ट इज, इट इज एन अपेरेंटली मॉरल कंसेप्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिव होने का, तो रिस्पॉन्सिव एक मॉरल कंसेप्ट है, ओके। कोई मतलब एक कोई मीटर नहीं है जिससे आप नाप सको कि कोई कितना रिस्पॉन्सिव है कितना रिस्पॉन्सिव नहीं है। इट इज अ मॉरल कंसेप्ट, इट इज नॉट, आप समझ रहे, जैसे एक होते हैं मॉरल वैल्यूज जो होती है, आप उनको ऐसे मेजर नहीं कर सकते। इट इज अ मॉरल कंसेप्ट, सो राइट, इट इज राइट। स्टेटमेंट गलत कौन सी होगी, स्टेटमेंट नंबर ए, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, क्यों, इट कैरीज अ डेफिनेट कोनोटेशन। मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए ओनली फिक्स्ड कोनोटेशन तो ये ऑब्वियसली गलत होगा। एक आप इस तरीके से गलत कर सकते हो, और आप दूसरी अगर समझो भी, डीप जाओ इस क्वेश्चन में, व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। Now, what is a responsive administration? Administration which is responsive. किसको responsive? Now, responsive to environment, responsive to citizens needs, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब suppose फिर
मोस्टली वी टेक सिटीजन्स की नीड्स को रिस्पॉन्सिव है। तो अब क्या जो सिटीजन्स की नीड्स हैं वो फिक्स्ड है, या सिटीजन्स भी हैं तो वो कितने तरीके के सिटीजन होते हैं। सपोज अब मैं आजकल इशू चल रहा है, फार्मर्स का इशू चल रहा है, तो फार्मर्स ग्रुप जो है वो भी सिटीजन्स हैं, बिजनेस क्लास है वो भी सिटीजन्स हैं, पुअर जो है वो भी है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स भी सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी या कोई भी बॉडी हो जो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की तरफ ही रिस्पॉन्सिव हो, कुछ हो सकता है कि हर किसी की तरफ रिस्पॉन्सिव हो। सो इट इज, ये फिक्स चीज है ही नहीं, ये बहुत रिस्पॉन्सिवनेस इज अ वेरिएबल, राइट। तो आप इसको एक डेफिनेट कोनोटेशन नहीं दे सकते हो। सो ए स्टेटमेंट तो आपकी डेफिनेटली जो है गलत होगी। अब जिसमें ए नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो क्वेश्चन कहाँ से है ना, दिस क्वेश्चन जो है आप उसको गुड गवर्नेंस से भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, टॉपिक गुड नंबर गवर्नेंस, बिकॉज देयर वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का फीचर है। या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी फीचर होता है दैट इट शुड बी रिस्पॉन्सिव। ओके, जब हम वो जो वॉलंटियर्स जो हैं, जो ड्वाइट वॉल्डो के अंडर जो थे वो जा रहे थे, जो उन्होंने मांग की थी कि इट शुड बी रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इट शुड बी कंज्यूमर ड्रिवन, जो भी उनकी वो डिमांड थी उसमें था एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे गुड गवर्नेंस से कनेक्ट किया है। So the option number 2 is correct. Now last question for today is causal studies in social research refers to. तो causal studies किसको बोलते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने पेपर वन अच्छे से किया या रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से किया वो बता सकता है यूनिट 10 में। ओके, तो causal studies, okay, so what are causal studies, what causes what causes what, किससे क्या हो रहा है, जिससे हो रहा है what, that is the cause, जो हो रहा है what, that is the effect। ओके, सो सिंपली कॉजल स्टडीज का मतलब है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को जो स्टडी करे। व्हाट इज कॉजिंग व्हाट, किस चीज से क्या हो रहा है, जिससे हो रहा है वो कोई ना कोई कॉज है, जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज जो हो रहा है दैट इज द इफेक्ट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉजल स्टडीज इन सोशल रिसर्च। तो ये पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब है, तो आपको मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया है। तो वन स्टेटमेंट इज डिजाइन द इफेक्ट्स ऑफ कॉज, हम कुछ डिजाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड, एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यस दिस इज द आंसर। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडक्शन डिडक्शन, यहाँ पे नहीं है। फोर्थ, एग्जामिन एप्रोप्रिएटनेस, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। अगर टाइप्स ऑफ जो हमारा रिसर्च है उसका ये हमारा टॉपिक है, जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है उसको भी हम कॉजल स्टडीज बोलते हैं या कॉजल रिसर्च बोलते हैं। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड कॉजल स्टडीज मीन द सेम थिंग। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आई थिंक 5 क्वेश्चंस ही जो है वो डिस्कस करेंगे, सो दैट इट इज इजी फॉर मी टू मेक द प्रेजेंटेशन, राइट। नाउ बिफोर आई से बाय, ये जो पिक्चर है इसका आंसर मुझे चाहिए फ्रॉम ईच वन ऑफ यू हु इज डेडिकेटेड टू दिस फील्ड एंड हु feels himself or takes himself or herself as a part of this community, as a part of the Meraki learning community. Okay, so when I put content for you, I also want you to be responsive. Okay, responsive administration like we were talking about. So I also want you to be responsive members of the community. So make sure you comment the reason, or you can write it to me if it is long. You can, or if it is too personal, you can write it to me on send it to my mail, or you can message DM it to me on my Facebook page, right? The Facebook page details and the email ID are shared in the description box. So make sure कि इसका जवाब मुझे send करें, and the result will be out very soon. So all the best to all of you, जिन्होंने भी मेहनत की है, जिन्होंने नहीं भी किया तो उनको भी all the best, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आए make sure you inform me. I really want to know, I want to be part of people जिनके साथ अपने वो आप happiness जो है, success जो है वो share करें। Okay, so yes, that's it for today's video. Thank you so much for watching and stay tuned till we meet next.